Hey guys, welcome back to your own channel Street Street 24/7. In this video, we are going to discuss all the telecom sector news of the week. तो इस हफ्ते की जितनी भी टेलीकॉम सेक्टर की न्यूज़ हैं, चाहे वो भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या फिर रिलायंस जियो से रिलेटेड हो, वी विल कवर इन वन सिंगल वीडियो. सो जस्ट ट्राई टू स्टे विद मी. सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे. So let's start from Bharti Airtel. So Bharti Airtel has got the buy rating from Motilal Oswal and the share target predicted by Motilal Oswal is of rupees 860. सो आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल के लिए यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल आप देख सकते हैं डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं. तो मोतीलाल ओसवाल इज लुकिंग बुलिश ऑन भारतीय एयरटेल एंड हैज रिकमेंडेड बाय रेटिंग विद ए स्टॉक प्राइस ऑफ और यू कैन से विद ए टारगेट प्राइस ऑफ rupees 860. So we can say definitely it is a good news for Bharti Airtel. Already we have seen the Bharti Airtel's quarterly results. Definitely Bharti Airtel has increased its ARPU. As you know, ARPU is always a leader for any telecom sector because once ARPU increases then it will lead to its revenue increase, and revenue when increases on quarter or year on basis then it definitely increases the GP, that is gross profit, and finally it helps the company to come out of if any losses to net profit. Definitely ARPU is driving Bharti Airtel's growth in the upcoming years also, and I also expect that Bharti Airtel has the potential to reach 4 digits and it should reach in 4 digits also. But before any fresh investor you can consult your financial advisor. So let's move to the next notification. Bharti Airtel Q2 review, growth steady, gaining market share, await a pickup in delivering Motilal Oswal. So Motilal Oswal is bullish on Bharti Airtel because here we can see the growth is steady and also it is gaining the market share of active subscriber, which is a good point for Bharti Airtel because whenever we can say active subscriber increases then definitely we will see the company is going to gain the momentum because active subscriber contributes to the company's growth also, because active subscriber generally recharges their phone on time and it helps the company to increase its ARPU, that is average revenue per user. Next is Airtel Jio races to shift feature phone users to smartphone. So Airtel and Jio both are struggling hard to shift their phone users to smartphone. So we can see, हम देख सकते हैं market is averse with the launch of the Jio phone Next in partnership with Google. The 4G phone that went into sale from Diwali is available for an upfront payment of rupees 1999. So Bharti Airtel and Voda and Reliance Jio is definitely working hard to gain more and more market share, and definitely if Vodafone Idea or BSNL not working on the same scenario then definitely they will capture their share also, market share also. Sorry. Next is Airtel expanding broadband network to 2000 towns, 35 million home passes. So Airtel is continuously on its expansion mode. It is expanding its broadband network also, and it has promised that it will definitely in the upcoming time increase its broadband network to 2000 towns and up to 35 million homes. Next is ARPU not sustainable, Bharti Airtel's Gopal Vittal. So company's CEO is saying, because why this news comes out, because जब तक आपको पता है कि यहाँ पे जो रिचार्जेस है उनके प्राइस नहीं इंक्रीज होंगे तब तक कोई हाई ARPU यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा. इसलिए फिलहाल कंपनीज क्या कर रही हैं, यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि मैक्सिमम जब ये मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगी, वंस दे विल गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर्ड देन डेफिनेटली दे विल ट्राई टू इंक्रीज इट्स प्राइसेस, देन डेफिनेटली दे विल गेट द हायर ARPU. बट अभी के टाइम पे इन दिस सिनेरियो वी कैन सी द जियो इज नॉट लुकिंग इंटरेस्टेड टू इंक्रीज इट्स recharge plans. That's why both the companies like Bharti Airtel, Vodafone Idea are not going to increase its recharge plans. Next is Airtel targeting its digital users based to drive payment banks business. So Airtel is targeting its digital user. Why it's targeting its digital user? Because अगर इनका जो डिजिटल आर्म है, इनकी जियो आर्म है, ये अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो इनके सब्सक्राइबर हैं उनको जो इनका पेमेंट बैंक है उसके ऊपर लेके आएगी, तो डेफिनेटली जो एयरटेल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो पेमेंट की तरफ, जिनका पेमेंट बैंक है उसकी तरफ शिफ्ट होंगे. ठीक है, तो देखना होगा किस तरह से ये एयरटेल कर पाता है, क्योंकि रिलायंस जियो भी ऑलरेडी ये काम कर रहा है. ठीक है, तो एयरटेल अगर अपना जो भी इनके जो सब्सक्राइबर हैं उसको लेके आ जाता है पेमेंट बैंक में, तो एक हम कह सकते हैं और भी अच्छा बूस्ट मिल सकता है. बिरला में इन्फ्यूज एटलीस्ट $150 मिलियन इनटू वोडाफोन आइडिया दिस मंथ. तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया के लिए. अगर यहाँ पे कुछ कैपिटल इन्फ्यूजन आ जाता है और वो भी $150 मिलियन का, तो एक हम कह सकते हैं पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि अभी मैंने जो रिसेंटली भी देखा है, अभी जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग वो भी लगभग मैंने 72% के आसपास ही दिख रही है, जो फिलहाल जो मैंने रिसेंटली चेकआउट किया था. तो अगर इतना इनको शेयर होल्डिंग रखना है, तो अगर इतना बड़ा और साथ में इतना बड़ा इन्फ्यूजन आ गया तो हम कह सकते हैं कंपनी अच्छा खासा बाउंस भी दिखा सकती है, लगभग
15 के लेवल को अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पाई काफ़ी टाइम से, तो 15 का लेवल टूटता हुआ देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में आपको 4.50 का लेवल भी ध्यान में रखना है। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट कोई भी करनी होगी तो यार अपने सोसाइटी अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प ले लेना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत हाई है, ठीक है। या तो पैसा बनेगा या पैसा डूब जाएगा, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन चुकी है। बट यहाँ पे डूबने के अभी चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी रिलीफ पैकेज भी मिल चुका है। नोकिया वोडाफोन आइडिया पार्टनर टू ट्रायल 5G सर्विसेज यूजिंग इवेंट। सो नोकिया एंड वोडाफोन आइडिया बोथ आर वर्किंग हार्ड टू ट्रायल 5G सर्विसेज थ्रू इट्स इवेंट्स इन एरियाज लाइक डिफरेंट एरियाज वी आर वर्किंग, ठीक है। तो काफ़ी एरियाज में ये वर्क कर रहे हैं, तो देखना होगा किस तरह से 5G इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले टाइम में काम कर सकते हैं। बट ये भी एक पॉजिटिव ही न्यूज़ है। नेक्स्ट इज एलोन मस्क स्पेसएक्स टू सून बिगिन टॉक्स विद जियो वोडाफोन आइडिया फॉर सेटकॉम कोलैबोरेशन इंडिया हेड। तो यहाँ पे एलोन मस्क की कंपनी आपको पता है स्पेसएक्स भी बहुत ज़्यादा उतावली है भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दे आर ट्राइंग हार्ड टू स्टार्ट इट्स टॉक विद जियो एंड वोडाफोन। तो इवन हम देख भी चुके हैं यूके में वोडाफोन के साथ ही इलॉन मस्क की कंपनी ने यहाँ पे टाइप भी किया है। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे अगर होती है देन इट कुड डेफिनेटली बी ए पॉजिटिव न्यूज़ फॉर बोथ जियो एज वेल एज वोडाफोन आइडिया। बट इट इज़ ए बेटर पॉजिटिव न्यूज़ फॉर वोडाफोन आइडिया बिकॉज जियो इज़ ऑलरेडी, आपको पता है कि यहाँ पे जियो के पास फंडिंग की इतना कोई हार्ड कोई टास्क नहीं है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको फंड जुटाना। Reliance Industry announces opening of Geo Drive in Theatre Waycliffe at Geo World Drive. So Reliance Industries is also very much possessive on its digital arm Reliance Jio, and they are working hard to work in different sectors also, and we are seeing the same in happening in मुंबई आल्सो। सो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जो भी थिएटर वगैरह है उनको ओपन करने की कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा देखते हैं पीवीआर टू ऑपरेट मैनेज जियो ड्राइव इन थिएटर इन मुंबई। सो इसको कौन मैनेज करने जा रहा है? पीवीआर। सो पीवीआर विल ऑपरेट एंड मैनेज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ऑन जियो ड्राइव इन द इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर एट जियो वर्ल्ड ड्राइव इन बीकेसी मुंबई, ठीक है। बांद्रा कुर्ला जो जंक्शन है उसके पास ये डेफिनेटली यहाँ पे ये पीवीआर के लिए भी एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे साबित हो सकती है, यहाँ पे इनका अगर कोलैबोरेशन ये सक्सेसफुल रहता है। चलिए तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आल्सो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।